Hello everyone. So students, today we are going to discuss the topic of challenges to political parties and what are the various reforms which can be done for political parties. So let's get started. So in terms of challenges, if we are talking, so the first challenge which is faced by different political parties is lack of internal democracy. So what is this lack of internal democracy? In terms of political parties, what we are going to notice that there is the tendency in the political parties towards the concentration of powers in on or few leaders at the top. सिंपल टर्म्स में इसका मीनिंग क्या है कि हम क्या देखते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के केस में क्या होता है कि जितनी भी पावर्स हैं रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, that is concentrated in the hands of the few. How it is concentrated in the hands of the few? हर political party के अंदर क्या होता है, there are certain leaders, top level leaders which are there. तो सारी जितनी भी powers होती है ना उस पार्टी से related, वो सारी powers कहाँ होती हैं? Those powers are concentrated in the hands of those leaders which are there. उसी के साथ साथ sometimes what is being noticed, the parties which are there, they do not conduct internal elections and ordinary members, they do not get the sufficient information on what happens inside the party. अगर इलेक्शंस की भी बात करें या रजिस्टर्स की बात करें कि जो पार्टीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो डिटेल्स हैं, तो द पार्टीज व्हाट इज बीइंग फाउंड ओवर देयर, पार्टीज दे डू नॉट कीप दैट मेंबरशिप रजिस्टर्स ओवर है. ये सारी चीजें कलेक्टिव. Next one after this is the next challenge which is faced over here by different political parties is dynastic succession. So what is this dynastic succession? Dynastic succession is कि sometimes what happens कि those who happen to be the leaders are in the position of an unfair advantage to favor people close to them or even their family members. जिसमें आप सिंपल टर्म्स में ऐसे देख सकते हो उसको डायनेस्टिक सक्सेशन को कि what you might come across कि sometimes what happens, जो पार्टी का टिकट है ना, वो पार्टी टिकट किसको दिया जा रहा है कि the party ticket which is there, it is usually given to the family members only. That is dynastic succession. Third challenge which is faced by a political party is in terms of money and muscle power. Parties क्या करते हैं? They tend to nominate those citizens as the candidate जो क्या कर सकते हैं, who have or who can raise the lot of money. ये सिंपल सी बात है, इसको ऐसे देख लो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और असेंशियल कंपोनेंट क्या है, क्या चाहिए किसी भी पार्टी की फंक्शनिंग के लिए? दैट इज मनी, दैट विल बी नीडेड. और वो मनी आएगा कहाँ से? ऑब्वियसली कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जिनके पास क्या होगा, विच आर हैविंग मोर मनी, या फिर वो अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, दे कैन रेज दैट मनी. तो ऐसे जितने भी पर्सन है जिनके पास ज़्यादा मनी है या जो मनी रेज कर सकते हैं, यूजुअली व्हाट इज बीइंग दे इवन सपोर्ट क्रिमिनल. मसल पावर, मनी की पावर तो आ गई समझ में. व्हाट इज दिस मसल पावर? मसल पावर मीन्स कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. किस टर्म्स में कि कुछ कैंडिडेट्स, कुछ सिटीजन्स ऐसे हो सकते हैं जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस हैं, तो वो उन क्रिमिनल कनेक्शंस को यूज़ करके क्या करें, दे आर गेटिंग द पार्टी टिकट. एंड द फोर्थ चैलेंज विच इज फेस्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज लैक ऑफ मीनिंगफुल choice. So what is this lack of meaningful choice? That is कि what happens in order to offer meaningful choice to the voters, parties they must be significantly different. significantly different से यहाँ पे क्या मीनिंग है? अगर आप सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना उनको कंपेयर करोगे in terms when it comes to participation in the elections, तो what you are going to come across, क्या देखोगे वहाँ पे
कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में क्या हो रहा है, दे आर नॉट ऑफरिंग एनी मीनिंगफुल चॉइस टू द सिटीजन्स। कैसे कि यूजुअली वो सेम टाइप के प्रोमिस कर रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ पॉलिसीज हैं उनकी, सिमिलर एक्शन, सिमिलर लॉज, सिंस दोज आर सिमिलर, तो इज इट अ मीनिंगफुल चॉइस फॉर द सिटीजन्स? नो। क्या है? तो देयर इज लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस. So these are certain challenges to the political parties. Now let's talk about certain reforms which can be done over here in terms of political parties. That is, let's start up with the topic of reforming the political parties. So what can be done for reforming the political party? और या क्या क्या चीज़ें करी गई हैं ऑलरेडी, लेट्स सी दैट. सर्टन चेंजेस मैं बार बार बताती हूँ, जहाँ पे भी ये टर्म आता है अमेंडेड, अमेंडमेंट, इसका क्या मीनिंग है? चेंजेस. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम चेंजिंग द पार्टीज. दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ विच इज देयर. ठीक है, ये क्या है? दिस इज इन टर्म, सिंपल टर्म्स इट इज नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ. What is this anti-defection law? This says that कि कुछ लीडर्स क्या करते हैं, many elected representatives they were indulging in the defection in order to become minister or for cash reward. But अब यहाँ पे क्या है? anti-defection law is there. What does that anti-defection law says? कि once you are being elected at any particular post, या कोई भी मेंबर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वंस दैट इज बीइंग इलेक्टेड, तो वो क्या करेंगे? दे आर नॉट हैविंग द राइट टू चेंज देयर पॉलिटिकल पार्टी. अगर वो ऐसा करेंगे तो उस केस में क्या होगा? दे माइट बी लूजिंग द सीट विच दे हैड वन. उसी के साथ साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट इट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स. अभी मैंने बताया था आपको चैलेंजेस में यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर. तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली इस मनी और मसल पावर को रिड्यूस करने के लिए क्या कर दिया? ऑर्डर वॉज पास्ड. व्हाट इज दैट ऑर्डर? नाउ इट इज मैंडेटरी. मैंडेटरी मीन्स compulsory for every candidate who contest elections to of कि कोई भी सिटीजन जो पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शन में उसको क्या करना पड़ेगा? हैज टू गिव द डिटेल्स अबाउट हिज और हर प्रॉपर्टी, any criminal cases which are pending against that person, details about that are to be given. Third reform, that is the election commission, it has done what now? It has passed an order. What is that order? It makes it necessary for the political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. And along with this, a law it should be made to regulate the internal affairs of all the political parties. इसी के साथ साथ में और क्या होना चाहिए? इट शुड बी मेड मैंडेटरी. ये तो देखो यहाँ तक अभी हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट में तो क्या किया? ये तो ऑलरेडी अप्लाइड है. अब हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें जो कि होनी चाहिए. क्या होना चाहिए? ये तो रिफॉर्म्स, 3 रिफॉर्म्स तो हो चुके हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, एफिडेविट फाइल करना कंपलसरी हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न फिल करना, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कंडक्ट करना, दिस इज कंपलसरी. बट और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? लॉ बनना चाहिए टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. देन इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, दैट इज नियर अबाउट 1/3 टिकट्स. Those should be given to the women candidates, and there should be state funding of elections. That is, the government it should give parties money to support their election expenses which are there. So this was your chapter. We have completed the major things from the chapter. बेटा इसके अलावा आप लोगों के बुक्स में
नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सप्लेनेशन और दिया हुआ है, तो हैव अ लुक एट दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम योर बुक्स. फॉर ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी यू शुड बी नोइंग एटलीस्ट 5 पॉइंट्स कि कौन से ईयर में वो पार्टी इस्टेब्लिश हुआ. मैंने आप लोगों को स्लाइड के थ्रू दिखाए थे नेम्स पॉलिटिकल पार्टीज के, एक बार फिर से दिखा देती हूँ. दीज ऑल आर द वेरियस पार्टीज. इसमें स्टेट पार्टीज भी है, नेशनल पार्टीज भी है. आपको क्या करना है, जो ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके लिए कुछ पॉइंट्स लर्न करना है. देखो जैसे कि व्हाट इज द सिंबल, बीजेपी पार्टी का दे रखा है, तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ दैट बीजेपी पार्टी. सिंबल इज लोटस. देन फाउंडेशन ईयर, करंट लीडर, आइडियोलॉजी 2004 2011. आपकी बुक में जो भी इलेक्शन से रिलेटेड डेटा दे रखा है associated to that you have to learn. Then ideology which is followed by that political party, that you have to learn. That's it for today. We have completed this chapter today. In our next session we are going to start up with next chapter. So thank you.